Good morning and warm welcome to Business Growth Workshop by KP Singh. So today we are going to understand how we can put our business into action. So basically today we'll discuss about the 5 phases and how we can uh, build our strategy, how we can set our goal, and how we can put all strategies into action. That's called execution. And then how we can produce results. So basically, this framework explains how a business owner can put their business on autopilot mode while putting them in a sustainable growth strategies, action, and results. So let's start now. So this is basically also help you to put your business on a 100 crore roadmap to success. That is called RTS framework. So like other Sundays, we always uh, explain, educate, and help business owners to put their business into action. This is basically the foundation of uh, stones of business, success, and happiness. So, what I believe, if we're doing business and if you're not happy, and if we are busy in daily firefighting since morning to evening, then again 24 hours, and thinking and thinking, putting complete efforts, whole efforts, and doing day and night, but still we are able to only survive in the market. We are not able to acquire much clients, and we are not able to collect revenue as per our expectation. So basically, in that case, we can't get happiness. So this workshop and this framework, and basically, I have been in the same situation actually at least 5 years, and then I discovered for you what is the best way to build our business with sustainable growth. So, guys, thank you so much for joining today, and really, I appreciate because you took your time from your comfort zone, and you have become a part of Learning Sunday. So, basically, if you are staying with this workshop uh, till the end of this session, then only you will be able to complete the cycle and you can able to put your business into growth. So dear business owners, I'm KP Singh, and I'm having a 20 plus professional experience, and I also struggled with a system for first 5 years of my business journey like you. And then I researched and found a key roadmap to success to put my business into multiply growth action. I developed the RTS growth framework and implemented so far with 200 plus business owners, business establishments to grow with RTS framework. So basically, just like other people like you, I'm also having a growth, and my goal with these 3 pointers, helping thousands of SMEs to reach 100 CR turnover by 2040, means in next 15 years, enabling 100 MSMEs to cross 500 crore turnover in the next 10 to 15 years, building a community of 10,000 business leaders driving transformative growth. So this is basically my goal of life, and what this today's session is a part of this one. So basically, this is extended help to business owners who are really ambitious and want to grow with the sustainable growth strategies.
So this, as I explained, this is a roadmap to success workshop, and this framework has been uh, uh, used and have been trained at least 250 plus business owners to implement RTS framework, and they have already put their business on growth track. Let us understand these 5 phases. So basically, this needs a small commitment. We cannot grow without commitment. So we have to understand, and we have to basically uh, how we can put our business into growth strategy. So this is basically a learning, and a lot of efforts are required. So this is a commitment to the framework. If you're not basically doing this one, not putting your efforts, so you can't grow, right? So this is a commitment to grow. Now, what are the 5 phases to put your business towards 100 crore turnover? So these are the 5 phases. First, build CEO mindset and master projection planning, master strategies and SOP to scale, build control system and delegation of task and authority. So these are 5 things have to execute day one by one into day-to-day system. So basically what will happen after that, आप एटलीस्ट 80% टाइम आप सेव कर पाएंगे अपना, और उसके बाद आप 20% टाइम में आप अपने बिजनेस को 100 CR पर ले जा सकते हैं. और इट साउंड्स रियली मिरेकल, बट दिस इज ट्रू. हम क्या करते हैं कि इस फ्रेमवर्क को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एंड इट टेक्स एटलीस्ट 90 days to do this thing. After that, you start experiencing the power of RTS framework. So let's go through one by one. पहला नंबर है कि बिल्ड सीईओ माइंडसेट. सीईओ माइंडसेट के बिना हम ये अचीव नहीं कर सकते हैं. CEO mindset is a very very primary requirement for these things. यदि मेरा माइंडसेट ही अलाइन नहीं होगा इस ग्रोथ से, या मैं मेरी विल पावर ही अलाइन नहीं होगी, तो शायद मैं इसमें से कोई भी स्टेप्स आगे नहीं बढ़ सकता हूँ. उसके लिए क्या है माइंडसेट? एक सीईओ माइंडसेट क्या करता है? तो एक सीईओ क्या करता है बेसिकली, हमें वो समझना पड़ेगा. तो पहला पॉइंट है फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज वर्सेस प्रॉब्लम्स. हम लोग क्या करते हैं कि हमारा हर एक बिजनेस ओनर, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 99% बिजनेस ओनर्स ये बेसिकली प्रॉब्लम से फोकस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज पे नहीं. तो प्रॉब्लम फोकस करने वाला इंसान को प्रॉब्लम ही दिखती है. तो बेसिकली हमें वही दिखता है जिस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं. तो वी हैव टू फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज. सो दिस इज अ माइंडसेट. हमें माइंडसेट करना पड़ेगा, बट ये ऑटोमेटिक होता नहीं है. Very thousands, only 1% out of thousands can do this on their own. But at the same time, this is not piece of cake. This needs a lot of effort to shift from problem oriented to opportunity oriented. Second one is set goal and keep tracking with actual. हम गोल करेंगे और उसको स्ट्रेटजाइज करेंगे, नंबर सेट करेंगे और उसको ट्रैक करेंगे. अपने बारे में जरूर समझना है. अगला पॉइंट ये है कि नो योर सेल्फ. सर, मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो अबाउट आवर सेल्फ. वेयर इज आवर स्ट्रेंथ लाइज, व्हाट इज वीकनेस, व्हाट इज स्ट्रेंथ, राइट? दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट. डेवलप पावर ऑफ प्रोसेसिंग इश्यूज. देखिए, इशू आना कभी बंद नहीं हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आना कभी बंद नहीं हो सकती हैं आपके लाइफ में, वो चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल हो. बट वो हमें इस चीज को कैसे प्रोसेस करना है ये हमें सीखना पड़ेगा. बिकम 1 minute मैनेजर. दिस इज वेरी पावरफुल थिंग टू मैनेज एंड टू ट्रैक एंड basically make your team to deliver the results. This is very much requirement. So basically these are our 5 points, and we'll discuss these points in detail when we do
different workshop, think like a CEO. अब आपको लगता होगा ये सब कुछ मुझे पता है, और रियली आपको सब कुछ पता है, बट द प्रॉब्लम इज आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू डोंट हैव राइट कोच, यू डोंट हैव राइट मेंटोर, राइट? So that's why it is happening. And apart from that, you don't have time to think about this thing. कैसे आप करोगे? आप तो 24 घंटे में से 12 घंटे अपने बिजनेस में एग्जीक्यूशन में बिजी हैं, उसके बिजनेस के ऑपरेशन में बिजी हैं, कस्टमर को सर्विस डिलीवरी करने में बिजी हैं। तो ये चीज आपका माइंड इस तरफ जाएगा ही नहीं, और आप इसको इसके बारे में सोचेंगे नहीं। तो एग्जैक्टली मुझे सब पता है, यू आर करेक्ट, बट उसके पता होने के बावजूद भी आप इसमें से कुछ भी कर नहीं पा रहे। अब क्या है कि इसमें हम समझते हैं कि प्रॉब्लम वर्सेस ओरिएंट जो अपॉर्चुनिटीज होता है, जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लोग होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बताया है कि फॉर अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड तो आपको प्रॉब्लम ही दिखेंगी, फॉर अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी। हम शिफ्ट कैसे करेंगे, हमने बात किया कि इस दिस इज नॉट पीस ऑफ केक एंड वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स विद द सिस्टमैटिक एक्शंस। यदि हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। और क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम का तो फंक्शन यही होता है कि हाउ वी कैन एस्केप दिस वन। तो जब हम लोग करने की बारी आती है, जो हम लोग एक लीडरशिप की बारी आती है, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग हमें सोचते हैं कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास कैश फ्लो नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास पार्टनर नहीं है, हमारे पास फैमिली नहीं है, हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। ये सारे चीज प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम हम मैंने आप लोगों से ही कलेक्ट करा है। तो दीज आर प्रॉब्लम्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द एंड मोस्ट आकरिंग प्रॉब्लम्स विद द बिजनेस ओनर्स। ये इनमें से ही आप लोगों के पास भी होगा, हो सकता है किसी के पास एक हो, किसी के पास दो हो, या किसी के पास ज्यादा भी हो सकती है। अब प्रॉब्लम आती है, हाउ विल सॉल्व वन टू अनदर, राइट, विल स्टार्ट पॉपिंग अप। अब इसमें क्या है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट, तो इन प्रॉब्लम्स को, एक प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो पता चलता है एक सॉल्व हुई नहीं और दूसरी क्रिएट हो गई, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई दूसरी आ गई। तो दिस कीप्स हैपनिंग। हाउ विल यू सॉल्व दिस? तो ये चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसीलिए सबसे पहले हमारा क्या है, इन चीजों में ना हमें जाके डिग डाउन करके कि हम प्रॉब्लम को सोल्यूशन करें, हमें अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड बनना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करनी है। We'll see the opportunity and we'll work on that. Automatically the problem will get disappeared. उनमें से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैंने कुछ लिस्ट किया है जिनमें आप फोकस कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव कैश फ्लो, अप स्किलिंग एंड क्रॉस स्किलिंग ओवर सी आर सेल्फ एंड टीम, गुड हेल्थ फेसिंग लाइफ डिजीज, टाइम विद किड्स, कॉस्ट कटिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। सो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम अपने प्रॉब्लम ओरिएंटेड से, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मेरे पास टीम एडुकेटेड नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको अप स्किल कर सकते हैं। हम यदि सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो हम अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें, rather than getting into the problems, we need to focus on opportunities. And when we start focusing on opportunity, automatically the situation and things and results gets start changing. Now you may be thinking these are opportunities. So what is the power? Or power of one, right? Which one is powerful? तो उनमें से एक मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत पावरफुल है, जो इस पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम डे वन। पॉजिटिव कैश फ्लो, जो कि 99% बिजनेसेस का ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है कि कैसे हम अपने को पॉजिटिव कैश फ्लो वाले बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू इट, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग टू लर्न टुडे। So whole things, whole struggle actually start happening around positive cash flow and negative cash flow. So we need to understand, if we are having a positive cash flow, so of course there is a signal to grow and for the sustainable growth. If you are achieving month on month positive cash flow, it means that you can
basically you can start your sustainable growth journey, right? Who is actually responsible for your current business cash flow? So this is a big question. अब ये आता है कि पॉजिटिव कैश फ्लो आए तो कैसे आए, इसका जिम्मेदार कौन है? यदि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास ये बीमारी है या फिर ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, देयर इज अ चांसेस। बट हम में से बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को यही नहीं पता होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ वी कैन सेट दिस प्रॉब्लम टू आई मीन टू हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट solution to this problem, because we don't know exactly what is the problem. Yeah. So I think you may be shocking that how you can become a problem of your own business. So this is a basically turning point of your mindset from business owners to CEO, yeah, from doer to a smart CEO. So this is has to be understood. How we can do it? Basically, we need to understand. Why me? Now, big question is that why I need to understand this one. Why I am our only problem. How we can understand and how we can define, how we can set ourselves accountable that we are in the problem. So this is basically first thing to accept and realize you are working as an operational manager, rather business owner or CEO in your company. So basically, when you are working as a business owner, a business manager, rather business owner, it means that you are deadly engaged in execution of your day-to-day processes. And when you are engaged in day-to-day processes, so you don't have time, you don't have uh, basically willpower to think and grow and put your business on a sustainable growth track path. So this is basically biggest problem of business owners. They are engaged in operational things day to day. What happens basically, we never accept that we basically we are our biggest problem in our business and how we can move it. So yeah, we need to understand and we need to accept this thing. Your business is your reflection and you are in charge of your business. So if you are in charge of your business and your business is your reflection, so of course whatever you have around you, that is your reflection only. So whatever you deserve, that nature has given to you, whatever you deserve, market has given to you, whatever you deserve, your team is giving to you. It means that you need to understand how you can upgrade yourself, how you can uh, go ahead, and how we can move ahead. Now, how we can do it? This is the big question. So, what we believe, and we help you to change yourself, to change your thought pattern with very tiny steps. When you start the small steps, taking small steps, you can notice growth and you can notice that you are moving ahead. You can notice your business is getting transformative, and you can notice you are getting relaxed, rather busy in firefighting, right? Now you are a step ahead. If you are practicing this thing and you have understood how we can build us your mindset, how you can shift your mindset from an operator or business manager to a smart CEO, right? So in that case, you are a step ahead towards 100 CR business growth, right? Now we have understood what a CEO does and how we can uh, transform ourselves, right, from a business owner, or sorry, business manager to a business smart business owner or a smart CEO, right? Now, let's move ahead to the second phase. This is the first phase. If you are skipping first phase, it's very much difficult to get into another phases, right? So allow me 1 second.
Yes. So let's move ahead to the second phase of ITS framework, right? So what is the second phase? In the second phase, basically we build master financial projection planning. So if you are not having a planning in place and you don't have a financial projection, so this is 100% chances you cannot implement whatever you want, and you cannot put your business on growth, right? So we need to understand this thing, how we can plan it. So what are the things we need to focus on? So we need to we need to align sales opportunities, salary projection, marketing projections, total expense, business learnings, and profit loss, right? And these all things must be aligned with the goal. So how we can set goal, basically goal, and how we can uh, build the financial projection. So we need to understand this thing. Now, how we can achieve this and how we can do it. So this I'm showing you some example, whatever we have done for other organizations. So we need to understand. So you can see this is a detailed goal sheet. So first page is basically one pager goal, and this is the only turning point of your business. If you are able to set your goal in a right way, so you can achieve it. Example just for understanding, or let's take example of one CR goal, right? So these are steps. I'm not going into detail because we have a different workshop for this, right? In the detail goal, because it's a very time taking, but definitely I would like to show you how we do it. This is a financial, this financial year goal. Then we need to understand what is the monthly revenue. We'll break out into months, and thereafter we can also break into weeks, and we can start achieving, we can start working on that, and we'll also help you in my further workshop that how we can basically build a strategy and how you can do successful execution. So here we can understand the what is the my ticket size, so average ticket size. So how we can come to know, we can understand from the basically competitor or my past experience. So then again we'll have to understand what are the customers required to achieve this goal, 166, and then further we'll dig down how many we have exist customers, then how many leads we need to have, and how we can collect the leads, how we can generate leads. So these are a part of this completely uh, projection planning. So what are the lead sources we can practice, from where we can achieve a lead? So these are basically questions this part of ITS framework answers very effectively, and very in an effective way. So we need to understand this, right? And thereafter, not only this goal, now we have a goal, we have a number of leads after setting this one page of goal, right? So now we need to understand the if we are having or we have defined what are the source of leads we need to basically generate. So what we can do it, we can write down here. This template basically we also provide the people who basically who work with us, and who work under our guidance or with this artist framework. So we provide this complete template. So it doesn't take a few hours basically to set for your business. So these are basically लीड्स ऑफ सोर्सेस जहां से हम लोग लीड लाएंगे, और ये हमने पहले डिसाइड कर दिया। और उसके बाद फिर हम कैसे लीड लेके आएंगे, कितनी लीड्स ले आएंगे, आएंगे, और कितना कन्वर्जन होगा, कितने परसेंट हम सैंपल भेज पाएंगे, डेमो भेज कर पाएंगे, ये सारी चीजें इस फ्रेमवर्क का पार्ट है, और इसमें हम बताते हैं। और उसके बाद ये भी आपको ये फ्रेमवर्क बताएगा कि आप यहाँ पर कितने रुपए की पर लीड पड़ेगी, कितना एक्सपेंसेस होगा, कितना आपका बजट होना चाहिए। इस अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को आगे प्लान कर सकते हैं, बिकॉज इन द बिजनेस
the cash flow, we already have discussed. The cash flow is much more important, and if OPEX and CAPEX both are a part of basically your cash flow, right? And whatever you are earning out of that. So your income वर्सेस योर एक्सपेंसेस, यदि हमें ये क्लियर हो जाता है तो हमारा ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो बहुत अच्छा जाता है। अब इसको क्लियर करने के लिए आरटीएस फ्रेमवर्क का ये वाला पार्ट जो फेज 2 है, इसमें हम आपको सिखाते हैं ये सर। ये इसके बाद आप हम ये सीख पाएंगे कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस हमारे टोटल कितने आएंगे। यदि ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस आप सीख लेते हैं कि हमारे मार्केटिंग कितने हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, इसमें फर्स्ट मंथ में जो मेरा एवरेज जाएगा वो जाएगा 1,12,500, राइट। उसके बाद मेरा मंथ जीरो जो कि अभी करंट है, जैसा भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं मेंशन कर लूंगा सो दैट वी कैन स्टार्ट कंपेयरिंग एंड वी कैन इंक्रीज अ बजट। उसके बाद जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो मैंने गोल सेट किया है उसके लिए ये सब ऑटोमेटिक आता है टेम्पलेट से। ये कितना एक्सपेंस मेरा फर्स्ट मंथ का होगा, राइट। तो 6,55,000, एंड देन सिमिलरली वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस विद डिफरेंट हेड्स। जहां भी हमें लगता है कि हमें बढ़ाना है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस वी कैन इंक्रीज। सो हमने उसी हिसाब से एक एग्जांपल सेट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पे इतने सारे आते हैं, और मुझे ये भी पता है कि मैं अभी आपको 1 साल का दिखा रहा हूँ, बट वी डेवलप फॉर 3 इयर्स। हमें ये भी पता होता है कि बाय एंड ऑफ द ईयर हाउ मच मनी वी नीड टू स्पेंड फॉर द मार्केटिंग पर्पज। तो ये एक पहला स्टेप है बेसिकली, जब हम नंबर कैलकुलेशन की बात करते हैं या कैश फ्लो की बात करते हैं। प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे हो जाती है कि हम इस चीज पे वर्कआउट नहीं करते, हम केवल जो इनकम वाला नंबर है उस पे फोकस रहता है। हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है, हाउ वी कैन कंट्रोल इट, हाउ वी कैन प्लान इट, वी नेवर फोकस। और ये चीज कभी भी शॉर्टकट से नहीं होता है। शॉर्टकट में आप मनी वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल। तो उससे अच्छा है कि हम लोग डे वन से ही एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ चले। सो वील सजेस्ट दिस वन, आरटीएस फ्रेमवर्क सजेस्ट दिस वन, right? And thereafter similarly we can you can also calculate the salary। तो दिस इज ऑल्सो वर्क्स, ये फ्रेमवर्क ये भी आपको बताएगा, जब फेज सेकेंड ये भी बताएगा कि कितने लोग आपके मार्केटिंग में होने चाहिए, कितने लोग आपके सेल्स में होने चाहिए, कितने आपके लोग एग्जीक्यूशन में होने चाहिए, किस पर्सन को क्या रोल मिलेगा। ये सारी चीजें आपको आरटीएस फ्रेमवर्क बताता है। और जहां तक हम अभी फेज 2 में फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जैसे आप वहां पे टर्नओवर चेंज करेंगे तो मोस्ट ऑफ थिंग्स विल गेट ऑटोमेटिकली। केवल 20% चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा एज पर योर करंट सर्कमस्टेंसेस। जो भी हमारे बीच में अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती हैं, वो उस चीज के लिए 20% केवल हमें मैनेज करना पड़ता है, बाकी सारा 80% आपको ऑटोमेटिक दे देता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सैलरी भी क्लियर हो गई, आरटीएस फ्रेमवर्क ने ये भी बता दिया कि हमारा सैलरी में कितना एक्सपेंस होगा। उसके बाद में टोटल एक्सपेंस कितना होगा मुझे ये भी बता देता है। तो टोटल एक्सपेंस की बात करें तो ये इतने तरह के एक्सपेंसेस हमने अभी कैलकुलेट किए, दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, एंड वी नीड टू learn and we need to basically do the analysis before doing this one। and जो लोग मेरे साथ चलते हैं तो मैं ये सारी चीजें हम लोग बैठ करके उनके साथ सेट करते हैं। ये मुझे पता चल जाता है कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस थोड़ा एक्सपेंसेस कितना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि आपका एक्सपेंस पता चल गया तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो गई। क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस तो बेसिकली यही है ना, कि आपका पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, जो इनकम आपकी होना चाहिए और जो एक्सपेंस होना चाहिए, इनकम आपके हमेशा एक्सपेंस ज्यादा होना चाहिए। अब ये भी ट्रैक करना जरूरी है कि हमारे पास एक्सपेंस जब हम तक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोजेक्शन नहीं सेट करेंगे तो हम उनको ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है। तो एक्चुअल क्या हो रहा है उसके हिसाब से तो हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है। तो आप हमारे पास, क्योंकि हर चीज जो मेजर होती है वो एक रेफरेंस पॉइंट से होती है। तो जो आपकी प्लानिंग होगी ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग होगी, और इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। इसके बाद क्या है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर सेल्स स्ट्रेटजी में किया था वहां से मुझे ये पता चल जाता है, यदि मैं मुझे हर एक बेसिकली जो सोर्स है इसका मुझे एवरेज टिकट साइज पता चल जाता है। तो मुझे आरटीएस पे मुझे ये बता देता है कि मेरा किस सोर्स से कितना रेवेन्यू आएगा, करेक्ट।
उसके बाद जब आप सभी को ऐड कर देते हैं तो आपको ये भी बता देता है कि मेरा इस मंथ में कितना रेवेन्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको रेवेन्यू पता चल जाता है, इसके पहले आपको टोटल एक्सपेंस पता चल गए थे। यदि मैं मंथ वन की बात करूं तो मेरा एक्सपेंस कितना था, 1 लाख, सॉरी 16 लाख, राइट, 16 लाख था। और मेरी जो अर्निंग है वो फर्स्ट मंथ में कितनी है, 23,57,000। इस इट मीन्स कि मेरा अभी पॉजिटिव कैश फ्लो है यदि मेरा बिजनेस हिसाब से चलता है। अब देखिए ये पहला फेज है, जो मैं कहता हूँ ये फेज 2 है। अब माइंडसेट सेट करने के बाद जब आपने मन बना लिया और आप एक स्मार्ट सीईओ माइंडसेट से काम करेंगे तो ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, फेज 2 में आप आज जाएंगे। और फेज 2 में आपको ये बताएगा कि ये आपका एग्जैक्टली जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है वो कितना है। तो फेज 2 हमारा ये सारा कवर करता है, और दैट दैट इज द पैरामोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि इसके बिना आप मूव करते हो तो 100% ये सारे सक्सेसफुल लोगों से आप पता कर सकते हैं, या ये सभी एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है कि आप इनको यदि नहीं करते हैं, यदि फाइनेंशियल प्रोजेक्ट सेट नहीं करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, कैसे जाना चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं। तो दिस दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। तो फेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है करना। फेज 1 पे हमने काम किया, फेज 2 में काम किया, और इसके बाद हमने प्रॉफिट सीट फेज 2 में निकाल लिया। प्रॉफिट सीट आपको ये बताएगी आर्टिस्ट फ्रेमवर्क की कि यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट कितना होगा, और नेट अर्निंग कितनी होगी, नेट एक्सपेंसेस कितने होंगे, और आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। ये आपको पहले दिन से ही पता होगा, बिफोर बेसिकली बर्निंग योर हार्ड अर्न मनी एंड वेस्टिंग ऑफ टाइम। इसके पहले ही आपको पता होगा कि क्या होने वाला होगा मेरे बिजनेस में। तो ये एक सैंपल है, और इस तरह से हम लोग करते हैं। तो, किसी बिजनेस में हम लोग काम करते हैं तो कुछ और भी चीजें होती हैं जिनका हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं, राइट। मूव करते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो सेल्स अपॉर्चुनिटीज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या रोल है, सैलरी प्रोजेक्शन, मार्केटिंग प्रोजेक्शन, देन दिस थिंग टोटल एक्सपेंस, बिजनेस लर्निंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फेज 2। अब हम फेज 3 पे मूव करते हैं, मास्टर स्ट्रेटजीज एंड एसओपीज। दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अब यहां से आपका पहला आपने माइंडसेट कर लिया, दूसरी दूसरे में आपने प्लानिंग कर ली, अब आपका एग्जीक्यूशन का टाइम आया है। एग्जीक्यूशन करने के पहले आपको टीम हायर करने के पहले, टीम को रोल देने के पहले आपको मास्टर स्ट्रेटजी बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मास्टर स्ट्रेटजी पे हम बात करते हैं, ये थर्ड फेज है। और मास्टर स्ट्रेटजी हम क्या क्या कवर करते हैं, बेसिकली आरटीएस फ्रेमवर्क कहता है कि सब फेज थर्ड में आप सबसे पहले सेल्स स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके बाद टीम बिल्डिंग एंड अलाइनमेंट विद द गोल काम करेंगे, एंड देन एसओपीज बनाएंगे जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। अब ये चीजें, तीन चीजों पे हमें काम करना है फेज 3 में। और सेल्स स्ट्रेटजी में क्या क्या हम क्या क्या आर्टिस्ट फ्रेमवर्क कवर करता है, प्रोस्पेक्टिंग, लीड्स, कन्वर्जन, कॉम्पिटिटर्स, ब्रांडिंग, अडॉप्शन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम मार्केट में काम करते हैं बेसिकली। आप, हमारा जो प्रोडक्ट होगा, हमारा जो सर्विस होगी, वो मार्केट में कैसे जाएगी, किसको बेचा जाएगा, कैसे अडॉप्शन होगा, क्या हमारी ब्रांड वैल्यू होगी, वो कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे हम बात करते हैं और पूरी स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, राइट। सेकेंड वन जो है टीम बिल्डिंग एंड अलाइनमेंट विद द गोल। तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए, ये जनरली क्या होता है, एमएसएमई कैसे मिस्टेक करता है, आप खुद इस बात को एहसास करते हो, शायद आपके साथ भी हो रहा होगा। ये फेज 3, ये कभी भी सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी बिजनेस ओनर नहीं करता है। यदि हम सेल्स स्ट्रेटजी की बात करें तो मोर देन 60% बिजनेस ओनर्स को प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं क्लियर होती कि मेरा राइट कस्टमर कौन सा है, मैं कस्टमर को कैसे डिवाइड करूं, मेरे हाई टिकट वैल्यू के कौन से कस्टमर हो सकते हैं, मेरे लो टिकट वैल्यू कैसे कस्टमर हो सकते हैं, मैं हाई टिकट वैल्यू में क्या जो कस्टमर्स हैं वो मैं क्या वैल्यू उनको डिलीवर करूं, कैसे मैं जस्टिफाई करूंगा, ये सारी चीजें आती हैं जो कि हम कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उसके बाद कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, टीम को ट्रेन कैसे करना है, मेरे पास लीड कैप्चरिंग कैसे होगी, जैसे मैंने बताया। इसके पहले हमने डिसाइड कर लिया जब हम लोग बेसिकली फेज 2 में थे कि कौन कौन से सोर्स होंगे, कहाँ से लीड्स आएंगी, उनकी पर लीड कॉस्ट क्या होगी, वो सब वहां पे प्रोजेक्शन में बता दिया। बट ये हम अचीव कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, अब फेसबुक से लाना है तो फेसबुक से कैसे लेके आएंगे, राइट।
उस पर हम बात करते हैं, वो स्ट्रेटजी हम बिल्ड करते हैं, और ये स्ट्रेटजी हम अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं। यदि हम कोई एजेंसी हायर करते हैं तो उसके साथ शेयर करते हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो हम लोग क्या होते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में मूव कर रहे होते हैं, और एक जो एक पावर है इस चीज का, कि जब हम एक ही गोल के साथ अलाइन होते हैं तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं, बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं हमें। और हम जैसे मैंने कहा कि आरटीएस फ्रेमवर्क आपको 80% रिजल्ट्स आपको 20% टाइम देने पे आ जाएंगे, राइट। टीम बिल्डिंग एंड अलाइनमेंट, ये एक अगले लेवल का बेसिकली इम्पोर्टेंट है। ये फेज 3 में हम लोग करते हैं, जिसमें कि हम लोग जो एक कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस होती है, जो एक फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस होती है, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं आरटीएस फ्रेमवर्क में। जेडी डिफाइन करते हैं, केआरए डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं, उनको कैसे पोजीशन किया जाए जो टीम मेरे पास है, और उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं एज पर देयर रोल। और उन उसके बाद वो अकाउंटेबल होते हैं। तो बेसिकली जो फेज 3 है, सेल्स स्ट्रेटजी हमारी हो गई। उसके बाद टीम को अकाउंटेबल कैसे बनाना है डिलीवरी के लिए, ये सारे चीज काम हो गया। और मेरा मेरा बिजनेस सब चीज को क्लिस्टर क्लियर कैसे हो, जो मेरी टीम है उसको कैसे मेरा बिजनेस क्लियर हो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। we expect from team that they must run our business, but they're not clear what is your business, and what is your structure, what is your strategies, what is your organization chart, आप कैसे पोजीशन किया है, आपको आपने अपनी टीम को कैसे क्या ट्रेनिंग क्या क्या देनी है, आपने मॉड्यूल नहीं बना रखे, और उनका क्या ही पता नहीं है उनको क्या डिलीवर करना है। इस तरह से जब आप कहते हो कि उनको आप ये काम नहीं करो, तो वो आपसे बेसिकली रिएक्ट करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो एग्जैक्टली, दे कांट मेजर देमसेल्व्स इवन दो दे आर वर्किंग विद द राइट माइंडसेट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। एसओपीज बिल्ड करते हैं हम लोग, एसओपी इंटरनेट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि सब कैसे होता है। यदि हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करें तो इसका एक अलग सेशन है, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग की बात करें तो देखो, मैंने थोड़ा सा आपको लिए रखा हुआ है आज दिखाने के लिए, बिकॉज लैक ऑफ टाइम वी कैन नॉट शो इन डिटेल, बट ये सारे फेजेस की डिफरेंट सेशंस होते हैं जब हम करते हैं, और उसमें हम सब बताते हैं। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है करना। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। यदि हमने टीम, देखिए यहाँ पे जो हमने गोल बनाया था सेल्स स्ट्रेटजी में, ये हमने बता दिया कितने लीड्स आएंगी, और उस बेस पे हमने ये भी निकाल लिया कि हमारे सेल्स में कितने पर्सन होंगे, राइट। सेल्स टीम। अब ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, कब होंगे, किस मंथ में होंगे, बट उनको पोजीशन कैसे करेंगे कि वो एक राइट एग्जीक्यूशन हो और गोल से अलाइन करे। तो उसके लिए क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना पड़ेगा। ये एम्प्लॉय का नेम है, किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जब इसका दिखे कैसे चार्ट, जब चार्ट बनाएंगे तो देखिए इस तरह दिखता है। ये कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। और ये क्या करते हैं कि ये हम सभी टीम मेंबर को दिखता है, और सभी को पता होता है कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, क्या चार्ट है। अब सर, जब आपके दिमाग की जो चीज है, जो आपका विजन है, बेसिकली आपकी टीम ही अचीव करने वाली है, टीम ही करके आपको देने वाली है। जब टीम को ही नहीं आप एम्पावर करेंगे तो कैसे देंगे। यदि आप टीम के और अपने बीच में एक गैप रखेंगे तो होगा क्या, आप इसी तरह फायर फाइटिंग में बिजी रहेंगे, आप सुबह शाम तक कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट। और उसमें होगा क्या कि आप लगे तो 24 घंटे रहेंगे, बट अचीव कुछ नहीं होगा, और सर्वाइवल के लिए ही आप फाइट करते रहेंगे लाइफ टाइम। इस चीज के लिए ये सारी चीज़ जरूरी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया। तो ये हमारा आईटीएस फ्रेमवर्क का थर्ड फेज है, जो कि टीम को कैसे पोजीशन करना है, उनके केआरए कैसे। अब जब ये पोजीशन क्लियर होती है तो उनको अपना केआरए भी क्लियर होता है, अपनी ड्यूटी भी क्लियर होती है, किसको क्या करना है वो भी उनको क्लियर होता है। तो ये पूरी टीम एक, जो हम लोग बात करते हैं एक ड्रीम होता है कि मेरी टीम एज ए टीम वर्क करे, वो यहाँ से क्रिएट होता है बेसिकली। तो ये आरटीएस फ्रेमवर्क की पावर है। इसको हम लोग इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब केआरए की बात करते हैं तो केआरए आपको थोड़ा दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे अब सेल्स टीम में केआरए, सेल्स टीम का केआरए देखो, यहाँ पे सब कुछ उसको पता है कि कैसे क्या करना है। ये देखो, ये 8 चीजें हैं जिस पे उसको ध्यान देनी है। एक तो टारगेट अचीव करना है, रेवेन्यू जनरेशन में ध्यान देना है, लीड जनरेशन, क्वालिफिकेशन। अब ये सारी चीजें हम पढ़ाते हैं। लीड को क्वालिफाई कैसे समझोगे, लीड कैसे जनरेट हो रही है हमारी, वो उसको पता होता है कि मेरे पहले वाला पर्सन क्या कर रहा है, मेरा क्या काम है, और उसके आगे वाला क्या करेगा। सेल्स के प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट डेमोज देने हैं, और इसके लिए टूल्स क्या लगेंगे, पीपीटी क्या होगी, ट्रेनिंग क्या होगी, क्या बताना है, ये सब टीम को ट्रेन करके आप एक
जो एक लो सैलरी वाला जो आपके पास एम्प्लॉय है, उसको उससे आप उससे जस्ट डबल सैलरी वाले एम्प्लॉय का काम करा सकते हैं, यदि आप ये सारे प्रैक्टिस कर पाते हैं तो। उसको हम यही बताते हैं कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, बिल्ड रिलेशन बिल्ड कैसे करते हो, सो दैट कि वो आपके लिए मल्टीपल बिजनेस भी जनरेट कर सके, और एक ही कस्टमर से और भी ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सके। तो ये सारी चीजें KRA का पार्ट है। तो जस्ट आई वाज शोइंग यू टू मेक यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज दिस। ट्रेनिंग मॉड्यूल इस तरह से हमने बना रखे हैं, और उसके बाद SOP और इंटरनेट की बात करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। देखिए, ये इंटरनेट है हमारा, इसमें सारा कुछ होता है। हमारी कंपनी कोर वैल्यूज होती हैं, कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एम्प्लॉय पॉलिसी। देखिए, यदि आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो सर इन चीज़ों को सारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वैल्यूज क्रिएट नहीं होगी कंपनी में, तब तक लोग आपके वहां टिकेंगे नहीं, और टिकेंगे नहीं तो आप हायरिंग फायरिंग में ही बिजी रहेंगे, और ये अक्सर बिजनेस ओनर्स के साथ होता है। इसमें सारी एम्प्लॉय पॉलिसीज क्या हैं, टिकट्स क्या हैं, ब्रीफिंग टिकट्स क्या हैं, एम्प्लॉय क्यारे क्या है, मार्केटिंग टिकट्स, ये सारी चीजें हम बताते सिखाते हैं। और ये बहुत ही इजी है सब कुछ करना। उसके बाद कंपनी के बारे में उनको सब कुछ पता होता है, कंपनी के सोशल मीडिया लिंक्स क्या है, न्यूज मीडिया में कोई न्यूज आए तो क्या क्या है, एक जगह एक सिस्टमेटिक वे में उनको प्रेजेंटेशन करते हैं, ताकि और ये सब उनको एक्सेस होता है, सो दैट दे कीप विजिटिंग, दे कीप स्टडिंग, दे कीप एनालाइजिंग, जो भी उनको समझना है वो यहाँ पे समझ सकते हैं, और इसी से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो दिस इज अ बेसिकली SOP। देखिए, यहाँ पे SOPs हम सब चीज की बना के रखते हैं कि कैसे कैसे SOPs है, और इन्हीं SOPs को फॉलो करते हैं। तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, जितने भी SOPs हम यहाँ पे रखते हैं, सबका डिपार्टमेंट है। ये जो फाइल्स आपको दिख रही हैं, ये सभी का ये अलग अलग एक्सेस लेवल है, कौन कैसे एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। कोर वैल्यूज हमारी इस तरह से जैसे लिखी रहती हैं, और ये बहुत सिंपल है। देखो, जैसे मैंने एक वर्कशॉप में बताया था कैसे बनाना है, देखिए कितना सुंदर सा बनाया है। इसको बहुत ही सुंदर बना सकते हैं जैसा भी आप चाहो। तो ये सारी हेडिंग्स हैं। तो ये हम बेसिकली फेज 3 में सिखाते हैं और बनवाते हैं RTS फ्रेमवर्क में, राइट। ये यहाँ पे SOP हो गए जो कि इंटरनेट पे हमें प्लेस करना है, करेक्ट। ये सारी चीजें हम जो RTS फ्रेमवर्क के फेज 3 में करते हैं, राइट। हम आगे फेज में चलते हैं। जब हम फोर्थ फेज में मूव करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि यदि आपके पास कोई टूल है, ERP CRM, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपर इन राइट वे। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको भी हम सॉल्व करते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि पहले बात तो सिलेक्शन ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा ERP CRM सॉफ्टवेयर कौन सा लें, कौन सा हमारे लिए काम करेगा। अब देखिए, इसमें बड़ा सिंपल मामला है, बट इसको हम बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कौन सा टूल हम यूज करें। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें जब क्लियर नहीं होती, जो हमारा फेज 1 फेज 2 हमारा क्लियर नहीं है, फेज 3 हमारा क्लियर नहीं है, तो फेज 4 तो हमारा हमेशा गलत ही होगा। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें किस तरफ जाना है, हमारी टीम कितनी होगी, हम किस तरह से टूल लें। हम आज के हिसाब से थोड़ी लेके दे सकते हैं सर, हम एक साल बाद कभी तो देखेंगे कि यही टूल तो हमें आगे लेके जाएगा। तो ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरी चीज आती है कि कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, बेसिकली कैसे इस चीज को हम सक्सेसफुल बनाएं। एक जो भी CRM ERP कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, उसके साथ मिलकर के हम कैसे करें। देखिए, बिना मिले तो कुछ नहीं हो सकता। यदि आप चाहोगे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ले लो, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ले लोगे, तब भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। वही लोग कर पाएंगे जो आपके यहाँ एक्सपर्टीज होगा, या फिर आप अपने जो भी CRM और ERP की ओरिजिनल कंपनी है, जो ओरिजिनल डेवलपमेंट कंपनी, उसके साथ मिलकर के आप काम करिए। उसको पता है कि उनका टूल आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकता है, और वो अपनी स्ट्रेटजी अपना प्लान शेयर करिए। बोलो सर, ये इसको आप इम्प्लीमेंट करिए, ये हम अचीव करना चाहते हैं। उनको भी क्लियर रहेगा कैसे वो हेल्प कर रहे हैं, कर सकते हैं आपकी, और कर सकते हैं। जैसे जब आप ये सब करने बैठोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं बेसिकली। और इस बट कॉमन होने के साथ साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसमें हम बीइंग अ बिजनेस ओनर हम स्टक कर जाते हैं। हमारे एम्प्लॉय किसी भी टूल को, सिस्टम को, CRM को, ERP को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देते। हम तो बिजी हैं अपने काम में, और उनको हमने दे दिया कि यूज करो जी। हम उसका पार्ट नहीं बनते, हम सोचते हैं कि ये तो बेसिकली एम्प्लॉय का काम है। ये सारे चीज जो मिथ्स हैं कुछ, उनको हम लोग दूर करते हैं। और RTS फ्रेमवर्क ये बताता है कि हाउ यू कैन मेक योर सिस्टम
जो टूल है आपका, जो सीआरएम है, जो ईआरपी, हाउ यू कैन मेक इट सक्सेसफुल, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आरटीएस फ्रेमवर्क दैट इज इन फेज 4। फ्यू फैक्ट्स हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना है और इनको दिमाग में रख करके चलना चलना है, राइट। और ये हमारा फेज 4 में होता है आरटीएस फ्रेमवर्क। इस तरह से आपको सक्सेसफुल सिस्टम बिल्डिंग में, ईआरपी सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन में आरटीएस फ्रेमवर्क आपको हेल्प करता है। अब आते हैं लास्ट जो फेज है डेलीगेशन का। अब ये सारी चीजें हो गई, बट टीम से काम कैसे कराएं? सब कुछ प्लेस कर दिया उनको, ये कर दिया, बट सबसे बड़ा चैलेंज लास्ट में आता है कि टीम काम ही नहीं करती। तो उसका भी हमने सोल्यूशन आरटीएस फ्रेमवर्क में दिया है, जो लास्ट फेज है। जब आप वो सारे काम कर लेते हैं तो अब यहाँ आता है ट्रेन एंड डेलीगेट। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे एमएसएमईज में होती है कि हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते, प्रॉपर रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करते, उनको प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रोवाइड नहीं करते, प्रॉपर टूल प्रोवाइड नहीं करते। और हम कोशिश करते हैं कि फेज 5 जो हमारा है वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए। हम फेज 1, 2, 3, 4 इसके बारे में हम बात ही नहीं करते, और फेज 5 में काम करना शुरू कर देते हैं। सर, अ, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और शायद जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप भी मुझसे कोरिलेट करेंगे कि ये कभी नहीं होगा, ये कभी होता ही नहीं है। इस चीज को करने के लिए आपको ये फेज 4 तक 1 बाय 1 आना पड़ेगा, तब फेज 5 आपके लिए इफेक्टिव होगा। इसमें हम टीम आपकी कैसे प्लेस होगी, कौन कौन से टीम हायर होगा, जैसे हम जो जो जेडी के आर की बात कर रहे थे फेज 3 में, उन सब चीज को माइंड में रखते हुए हम यहाँ पे इस तरह से ग्रोथ जर्नी को कैसे अचीव कर सकते हैं, उन चीजों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं डेलीगेशन के माध्यम से। सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ, हम क्या करें। फिर हमारी टीम में जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करे, जो हमें रिपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें कि जो सीईओ है, और इसके बाद जो सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हैं वो, उनका क्या काम है, और उनके जो उनको टीम रिपोर्ट कर रही है उनका क्या काम है। तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली समझने की जरूरत होती है। अब जब ये समझ गए हम, तो हमारी कहानी आधी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट पार्ट है वो फेज 5 है। अब इसमें क्या है कि क्योंकि इसमें टीम को काम कराने वाला सिस्टम है, तो ये अब यहाँ पे होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इससे कोरिलेट करना पड़ेगा आपको कि मास्टरमाइंड टीम हमारी कौन सी होगी, कोर टीम कौन सी होगी, मास्टरमाइंड टीम कौन सी होगी, फिर इसके बाद एक्सटेंडेड टीम कौन होगी। तो बेसिकली क्या होता है, कोर टीम तो स्ट्रेटजी बनाती है, इंश्योर करती है कि जो स्ट्रेटजी बनी हुई है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो, प्रॉपर एग्जीक्यूट हो। और यदि एग्जीक्यूशन टीम प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो वो उसको रिव्यू लेते हैं, उनको बताते हैं कि यू आर मेकिंग मिस्टेक। जो सीएक्सओस हैं, जो कोर टीम का पार्ट है, वो कोलैबोरेशन में फोकस करते हैं, वो हाई टिकट क्लाइंट पे फोकस करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं। जो मास्टरमाइंड टीम है आपकी, वो टीम आपकी एग्जीक्यूशन टीम होती है बेसिकली, कि जो आप ऊपर से बना कर देते हो, एनालिसिस करके और ड्राफ्ट करके देते हो, जो हमने फेज 1, 2, 3, 4 में देखा, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन में काम करती है। और एक्सटेंडेड टीम होता है, दे आर डूअर बेसिकली, फॉलोअर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एग्जीक्यूशन टीम होती है उनके लीडरशिप में बेसिकली दे आर वर्टिकल एड्स। तो यहाँ पर इनके जो अंडर टीम मेंबर्स हैं, दे वर्क ऑन डे टू डे बेसिस। बेसिकली इनका काम है, जो कि हम काम कर रहे हैं पहले, सबसे पहले उनका काम है। और होता क्या है, जब ये सारा चीज आरटीएस फ्रेमवर्क नहीं होता, हम लोग सुबह शाम तक का वी बिकम्स अकाउंटेबल, टीम डजन बिकम अकाउंटेबल। अब कोई डिलीवर नहीं हो रहा है कोई काम, तो वी आर इन द टेंशन, बट टीम इज नॉट इन टेंशन। They are not feeling themselves accountable, but you only always become accountable for each and everything, undelivery thing, और जो भी गलत हो रहा है, you become accountable, you take responsibility, but your team doesn't take। यही सब जो चीजें हैपनिंग होती हैं हमारे डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे फंक्शन में, ये चीजें होती हैं कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं ले जाती हैं, और हम डिस्पाइट पुटिंग आवर टाइम, एफर्ट्स, मनी, बट वी नेवर गेट सक्सीडेड, और हम सर्वाइवल मोड में रहती हैं। सर, 90% बिजनेस 5 साल में खत्म हो जाते हैं।
5 साल में, और 70% बिजनेस 3 साल में खत्म हो जाते हैं। केवल 10% बिजनेस है जो आगे इन चीजों को लेकर चलता है, वही चलते हैं जो जिस तरह से मैंने बताया, जिस तरह से आरटीएस फ्रेमवर्क आपको एक्सप्लेन करता है या काम कराता है, यदि इस सिस्टम से आप काम करते हैं तो वही चीजें सरवाइव कर पाती हैं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है कि डेलीगेशन कैसे करें, तो कुछ चीजें हैं जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एनालिसिस, ये चीजें की गई हैं कि आपको केआर डिफाइन करना, जो हमने पहले बोल दिया है, उनको ट्रेन करना रेगुलरली, लिस्ट मंथली। सर जो 1 मिनट मैनेजर तो बताया था, वो सर 5 मिनट लगता है इन सब चीज़ों के, जो रिव्यू हम लोग घंटों करते हैं, ये सब करते हैं, 5 मिनट लगता है। इसकी आदत डालनी पड़ेगी और ये हमें समझना पड़ेगा डिटेल में, जो कि आर्टिस्ट फ्रेमवर्क बहुत डिटेल में समझाता है। Implement CRM system, start with a small team, right? Define and share performance metrics, track performance with the CRM ERP only as per metrics, interaction only as per 1 minute manager, make learn to टीम मेंबर्स टू डिलीवर इन टाइम बिफोर डेडलाइन। तो ये चीजें हमें एक कल्चर बिल्ड करना होता है। तो बेसिकली जो एक टास्क डिलीवरी सिस्टम है वो आपका कल्चर बिल्ड कर देता है, ये ऑल टुगेदर एक ग्रोथ कल्चर की तरफ हमें मूव करता है बेसिकली। तो ये हमारा जो लास्ट फेज है वो बताता है आपको टास्क कैसे डेलीगेट करते हैं और पावर कैसे डेलीगेट करते हैं। आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या है, टास्क डेलीगेशन ऑफ जर्नल डे टू डे टास्क। उसके बाद आपको सबसे बड़ा एक गलती होती है बिजनेस ओनर की, कि वो टास्क तो डेलीगेट कर भी देता है बट पावर डेलीगेट नहीं करता, यानी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती किसी और टीम मेंबर, हर चीज के लिए बिजनेस ओनर के थ्रू जाती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर होना चाहिए। पीपल कैन टेक दियर ओन डिसीजन एज पर दियर लेवल। तो डिफाइन होना चाहिए कि आप क्या पावर करते हो। जब आप क्या डिफाइन करते हैं, वहां पर वो सारी चीज डिफाइन करते हैं कि आप क्या, आपके पास पावर है, क्या डिसीजन है, कैसे आप आगे मूव कर सकते हो, ताकि एक बंदे वाली कंपनी नहीं बनना है, सिस्टम वाली कंपनी बनना है। उस सिस्टम से ही सारे टीम मेंबर, सारे कस्टमर, सारे वेंडर, सारे कनेक्ट होंगे। और उस समय आप देखोगे कि आप जो 100% आप बिजी थे काम में, तो आप ओनली 20% टाइम दे करके आप सारे उससे बेहतर चीजें कर पा रहे हैं और कंपनी को 2x 3x और 10x कर पा रहे हैं, और बड़े बड़े कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको परफॉर्मेंस ऑडिट करनी है, फाइनेंशियल ऑडिट करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। किसका क्या परफॉर्मेंस, किसका नहीं। और ये सर, ये जो 20% टाइम में कर रहा हूँ, ये उससे और कम टाइम में हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको डे टू डे भी एंगेज होना है। आप डे टू डे नहीं हो पाते तब भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। आपको फोकस करना है डिसीजन मेकिंग पे। और बंदे जो हायर करने हैं वो आईक्यू लेवल आपका टेस्ट, उनका टेस्ट करना है कि क्या उनका आईक्यू लेवल, यदि आईक्यू लेवल होगा सर, आप अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में उनको ट्रेन कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, राइट। तो यही बताता है कि आपको कैसे करना है। ये था आपका आरटीएस फ्रेमवर्क के 5 फेजेस। और यदि 5 फेजेस आप चल पाते हो तो आपका बिजनेस गारंटेड 2x, फिर 3x, फिर 5x। और यदि आप थोड़ा सा बेटर कर पाए तो आपको 3x 5x भी आपको पर ईयर मिल सकता है आपका बिजनेस, विथ 20% एफर्ट्स, 20% टाइम गिविंग टू द सिस्टम, नॉट मच। आप इसके साथ साथ दो और बिजनेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने टाइम, घर को टाइम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना जो भी आपका हॉबी है वो परस्यू कर सकते हैं। तो ये हैप्पीनेस जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि बिजनेस विद हैप्पीनेस, दैट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीएस फ्रेमवर्क। सो दिस इज बेसिकली, आपने इसके पहले जो भी समझा आपने, वो आरटीएस फ्रेमवर्क के जो फ्रेमवर्क जो बताता है 5 फेजेस है, वो हमने आपको समझाया है। आई होप एक्चुअली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड और ये सारी चीजें होती हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली इसमें आप यदि समझते हो कि ये आर्टिस्ट फ्रेमवर्क हमें समझ तो आ गया, बट हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस वन, तो हाउ टू गेट आर्टिस्ट फ्रेमवर्क इनटू बिजनेस, दैट मे बी अ क्वेश्चन रनिंग अराउंड योर माइंड, राइट। इसमें बेसिकली हम आगे मूव करते हैं तो कैसे हम कर पाते हैं। जो चैलेंजेस बेसिकली ज्यादातर बिजनेस ओनर को होता है वो ये होता है कि जैसे हमने पहला जो फेज में बात किया था, हम क्यों पहले फेज की बात करते हैं, क्यों सीईओ माइंडसेट की बात करते हैं, क्यों एक ऑपरेटर या बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर को एक स्मार्ट एसईओ बनने की सलाह देते हैं। क्योंकि देखो जी, आपकी हैबिट्स जो बन चुकी हैं वो वेरी मच डिफिकल्ट टू चेंज,
राइट। जब तक आप आरटीएस फ्रेमवर्क का पहला फेज नहीं ढंग से आप करते हैं, तब तक आपकी हैबिट चेंज नहीं होंगी। और आप होगा क्या, आप एक महीने काम करेंगे, एक हफ्ते काम करेंगे, एक महीने, एक 15 दिन काम करेंगे, उसके बाद फिर आप अपने पुराने वाले हैबिट्स में आ जाएंगे, और फिर वो सारा कुछ आप फिर कहेंगे यही कि मेरे लिए ये सिस्टम या कोई भी अदर सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि ये नॉट नॉट ओनली दिस सिस्टम, कोई भी सिस्टम नहीं काम कर सकता यदि आपका पहला फेज कंप्लीट नहीं है या अपनी हैबिट्स को ब्रेक नहीं करते हो विद द स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। लैक ऑफ विल पावर होता है आपका कि पता नहीं होगा नहीं होगा, करें कि नहीं करें, हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, कैसे करेंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम हमारे पास इतनी अच्छी टीम ही नहीं है, ये सब चीजें आपके दिमाग में होंगी। तो इसको भी, इसका भी सोल्यूशन है। और आरटीएस फ्रेमवर्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास अभी टीम है कि नहीं है, टीम आपकी कैपेबल है कि नहीं है, एडुकेटेड है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपकी टीम बिल्ड करने में हेल्प करेगा। कौन किस पर्सन को पहले हायर करना है, किसको बाद में हायर करना है, आपके पास बजट क्या है, ये सब सारी चीजें देख करके आरटीएस फ्रेमवर्क करता है। भाई इतना ही होगा, आपके पास बजट कम होगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, बस इतना ही होगा। बट आप यदि आज जो कर रहे हो वो आपकी ग्रोथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डेली कुछ अलग अलग करते हैं तो होगा क्या कि ज्यादातर क्या होगा कि इसमें जो चीज हमें एक साल में अचीव होने वाली होगी 2 साल में होगी। बट ऐसा नहीं होगा कि हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, इजी नहीं हो रही हैं, अब थोड़ा और मुश्किल हो रहा है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारा रेवेन्यू डाउन हो रहा है, ये सब चीजें नहीं होगी। हम टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो सब चीजें हट जाएंगी यदि आपके पास पैसे बजट नहीं है। तब भी आर्टिस्ट फ्रेमवर्क यदि आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपको ये सब चीजें का सोल्यूशन मिल जाएगा, और आप अपनी ग्रोथ जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें होती हैं। इसके लिए बेसिकली थोड़ा कमिटमेंट होता है। तो कहते हैं कि फ्री इज मोर कॉस्टली, कभी भी फ्री पे नहीं जाना चाहिए। और फ्री होता है बेसिकली आपका टाइम तो लेता लेता है वो, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। आपका टाइम भी, टाइम का तो कॉस्ट है जो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट है बेसिकली, मनी से भी ज्यादा। तो ये चीजें हमें समझनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी चार्ज लिटिल बिट अमाउंट फॉर दिस थिंग, एंड वी ऑलवेज हैव अ 3 days बूट कैंप। वो वो हम लोग अनाउंस करते हैं आपके लिए। और जब when you become a part of community and you opt for RTS framework, so definitely you will be notifying each and everything। इसके लिए एक कमिटमेंट है छोटा सा कि हम लोग बेसिकली 5,000 प्लस जीएसटी हम लोग कमिट करते हैं। और ये आपका कमिटमेंट है। और एक स्मॉल कमिटमेंट है इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, सारे टेम्पलेट्स आपको लेने के लिए। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड रियली, मैं तो कहूँगा कि पहले आप आर्टिस्ट फ्रेमवर्क को समझें, और हमारी वर्कशॉप अटेंड करें। और विद द हमारी वर्कशॉप जो अलग अलग फेजेस की होती हैं वो 499 की होती हैं, बड़ी सिंपल हैं, जो कि आप किसी किसी का तो पर डे का एक्सपेंस है, ये जनरल एक्सपेंस है, तो दिस वेरी मच स्मॉल अमाउंट। वो आप अटेंड करें, देखें हाउ हाउ इट कैन वर्क फॉर योर बिजनेस। And you can also book a one-to-one call. You can go to our website kpsang.co.in, and you can become a one-to-one call also with 499। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए आर्टिस्ट फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा या नहीं करेगा, या कैसे करेगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, and share basically this entire framework with your network, business owner network, so that they can also get benefited with the very very lowest basically commitment, financial commitment, and huge benefits. Thank you so much for joining, and uh, see you again. uh, Happy weekend, and wish you all the best for your business. Thank you so much.